Praise the Lord. Good morning to all of you and welcome to day 31 of 40 days fasting and prayer. जय मसीह की शुभ प्रभात। आप सभी को इस उपवास और प्रार्थना के 31वें दिन में आपका स्वागत है। So today we will look at some powerful and positive emotions. So far we have been looking at negative emotions. Now we will look at a couple of very positive and very powerful emotions. तो आइए आज हम अब देखेंगे कि सकारात्मक और सामर्थी जो हमारे भावनाएं हैं उनके विषय में पिछले दिनों में हम देख रहे थे जो नकारात्मक भावनाएं हैं। आज से हम देखेंगे कि सकारात्मक भावनाएं जो बहुत सामर्थी हैं अपने जीवनों में। So today's topic is receiving the anointing of contentment. और आज का विषय है कि कैसे हम संतुष्टि की आत्मा का अभिषेक प्राप्त कर सकते हैं। 1 Timothy chapter 6 verse 6. पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय 6वां वचन ऐसा कहता है। I will read only a portion of it. It says, godliness combined with contentment brings great profit. I will read once again. 1 Timothy chapter 6 verse 6, it says, godliness, when it is combined with contentment, it brings great profit. यहाँ पे ऐसा लिखा है पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय 6वां वचन, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। So, if you look at the background, the spirit of contentment is a divine agent that causes people to become happy and pleased with what God has provided them thus far in their lives. इसी कारण ये जो इसकी पृष्ठभूमि को हम देखते हैं, ये जो संतोष की जो आत्मा है, संतुष्टि की आत्मा है, ये परमेश्वर पिता की ओर से ये अलौकिक जो आत्मा हमको दी जाती है, वो उस व्यक्ति को जो उसे ग्रहण करते हैं उसको आनंदित करती है। और जो कुछ भी उस व्यक्ति के पास होता है वो ये मानकर कि सब बातें परमेश्वर की ओर से मुझे मिली हैं, वो आनंदित रहता है। Contrary to what many people think, that the spirit of contentment is not they think that it is a spirit of lethargy or it's a spirit where there is no ambition, but that's a wrong conclusion. और ये उस बात से बिल्कुल विपरीत है कि संसार के लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि जो व्यक्ति बहुत संतुष्ट रहता है कि अब वो व्यक्ति वो ढीला डाला है, वो अब और काम करना नहीं चाहता, वो अपने जीवन में आगे बढ़ना नहीं चाहता है। And therefore, the spirit of contentment, it blesses its recipients with the gift of focus and razor sharp concentration, thereby making whatever kind of breakthrough those people are seeking in their life, it will come to them easier and in a faster way. और ये जो तृप्ति की जो आत्मा है जिस व्यक्ति के जीवन में ये अब ये काम करती है, उस व्यक्ति को अपना ध्यान केंद्रित करने में बहुत ही उसके लिए आसान हो जाती है बातें। वो एकाग्रचित होकर जिस बात को वो अपने जीवन को, जिस लक्ष्य को वो पाना चाहते हैं, उन बातों को वो आसानी से अपने जीवन में वो पा जाते हैं। It is truly a powerful force that can make someone great in their life as long as they are in the will of God. और इसी कारण ये आत्मा जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा सामर्थ्य होती है और ये इस व्यक्ति के लिए बहुत ही आसान कर देती है कि जब तक वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हैं अपने जीवन में वो ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। So the spirit of contentment is a divine agent of protection from most of the dangers and traps and snares this world and the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life they have to offer. This spirit of contentment is actually a divine force of protection against them. और ये जो संतुष्टि की जो आत्मा है ये परमेश्वर पिता की ओर से अलौकिक तौर पे दी गई उनको सुरक्षा होती है। ये जो व्यक्ति जिनके पास ये आत्मा होती है वो सुरक्षित पाए जाते हैं हर एक आंखों की अभिलाषा से, हर एक शरीर की अभिलाषा से, हर एक जीविका के घमंड से और बाकी पापों से उनको सुरक्षा प्रदान करती है। So let's briefly learn the characteristic of the spirit of contention so that you and I can obtain breakthrough in our life in the areas we require. So आइए हम इस तृप्ति की आत्मा के विषय में उसकी विशेषताओं को देखेंगे ताकि हम इन जीवन को अपने जीवन में ये इन विशेषताओं को हम लाने पाएं। Let's look at the characteristics of the spirit of contentment. आइए हम इस संतुष्टि की आत्मा के विशेषताओं को देखेंगे। The spirit of contentment can make you appreciate and become satisfied with what you have been blessed with thus far in your life.
ये जो संतुष्टि की आत्मा है, ये आपको ऐसा करने का अवसर देती है कि आप सराहना कर सकते हैं कि जो कुछ आपने जीवन में अभी तक हासिल किया है, आप उससे संतुष्ट हो जाएं। It causes you to become happy. ये आपको आनंदित करती है। This spirit of contentment makes it hard for you to become upset by people or the circumstances of life because you are content. और ये संतुष्टि की आत्मा आपकी मदद करती है कि जब परिस्थितियां जब खराब होती है, जब लोग आपके विरोध में होते हैं, तब भी आप अपनी शांति में बने रहते हैं। ये सिर्फ संतुष्टि की आत्मा के द्वारा ही हो पाता है। This causes you, the spirit of contentment, experience complete peace of mind and also peace with others. और ये जो संतुष्टि की आत्मा है, आप अपने जीवन में पूर्ण तरीके से शांति को महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और दूसरे के साथ भी आप शांति से रह सकते हैं। It causes you to be protected from conscious or unconscious intimidation. और फिर ये जो आत्मा है आपकी सुरक्षा करती है, जो आप चाहे जो जानबूझकर या अनजाने में जिस प्रकार से जो लोग आपको भय लाने की कोशिश करते हैं, आप उनसे भयभीत नहीं होते हैं। It reduces, the spirit of anger attack in your life. और ये जो क्रोध की आत्मा का जो आघात हमला है, उसको भी वो कम कर देती है। It protects you from fight or other forms of violence. ये आपको सुरक्षा प्रदान करती है लड़ाई झगड़ों से और दूसरे प्रकार से हिंसात्मक क्रियाओं से। It protects you from inferiority complex. वो आपको हीन भावना से सुरक्षित रखती है। It causes you to become tolerant towards others. ये आपको दूसरों को बर्दाश्त करने की आत्मा प्रदान करती है। It protects you from resentment towards others. आप दूसरों के प्रति बदला लेने की भावना से आपको आजाद करती है। Protects you from a vengeful mindset. वो आपको बदला लेने की भावना से सुरक्षित रखती है। Protects you from ungodly competition and rivalry. और ये जो पवित्रता के बजाय भक्ति के अलावा जो जीवन में बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धाएं होती रहती हैं और अनावश्यक लोगों के साथ बैर भाव या प्रतिस्पर्धा करने की आत्मा से आपको सुरक्षित रखती है। Protects you from emotional problems like anxiety, depression, envy, desperation. और फिर ये जो आपके जो मानसिक जो समस्याएं होती हैं, जो ईर्ष्या की भावना होती है, डिप्रेशन की आत्मा होती है, और लोगों से बैरभाव की आत्मा होती है, कड़वाहट की आत्मा, हर एक से आपको सुरक्षित रखती है। It protects you from diseases which easily besets people with emotional problems such as high blood pressure and heart disease. और ये आपको जो लोग जो मानसिक समस्याओं के कारण जो उनके शरीर में भी जो बीमारियां आ जाती हैं, जैसे कि उच्च रक्तचाप या फिर उनके हृदय में समस्याएं, उनसे भी आपको सुरक्षित रखती है। This causes you to become satisfied and fulfilled. ये आपको हमेशा संतुष्ट रखती है, अपने आप में परिपूर्ण रखती है। It makes you incorruptible and therefore sets you free from greed and its consequences. ये आपको भ्रष्ट होने से बचाती है, आपके अंदर ये लालच होने नहीं देती और लालच के जो दुष्परिणाम हो सकते हैं उससे भी आपको बचाती है। The spirit of contentment, protects you from any type of crime or sin which people easily fall into. और संतुष्टि की आत्मा आपको किसी प्रकार के गैर कानूनी काम करने से, अपराध करने से सुरक्षा प्रदान करती है। It protects you from shame and disgrace. On the other hand, it actually clothes you with dignity and honor because the spirit of contentment is in your life. हर एक शर्मिंदगी से, हर एक अनादर से ये आत्मा आपको बचाती है। उसके बदले में वो आपके ऊपर आपका मान सम्मान का और आपके जीवन में ऊंचे पद को लेके आती है। It protects you from regret and eliminates distractions from your life. आपके जीवन से हर एक पछतावे को वो अलग करती है। आपके जीवन में जिस बातों से आपको नकारात्मक बातें आती थी, उनसे सुरक्षा प्रदान करती है। It also helps you to achieve your professional goal, your financial goal, or your relationship goals or breakthroughs in your life. The spirit of contentment provides that. और ये जो संतुष्टि की आत्मा है आपके जीवन में, जो व्यावसायिक तौर पे जो आप लक्ष्य को पाना चाहते हैं, जो व्यक्तिगत तौर पे लक्ष्य को पाना चाहते हैं, जो आर्थिक तौर पे जो जिन लक्ष्यों को पाना चाहते हैं, हर एक आपके जीवन के उन लक्ष्यों को आपको पाने में ये मदद करती है। This spirit of contentment also helps you to establish good relationship, strong relationship with your God, and also to become more appreciative and thankful to Him for everything He has done in your life.
और ये जो संतुष्टि की आत्मा है, आपका जो संबंध परमेश्वर पिता के साथ है, उसको और भी वो बेहतर करते जाती है। आप परमेश्वर पिता का अच्छे हृदय से, सही तरीके से हर एक जो बातें परमेश्वर पिता की ओर से जो आपको मिलती हैं, आप उनके धन्यवादी बने रहते, उसकी सराहना करते रहते So हैं। let's learn some prayers to receive the spirit of contentment in our lives. तो आइए हम कुछ प्रार्थनाओं को सीखेंगे जिसके द्वारा हम संतुष्टि की आत्मा को ग्रहण कर सकते हैं। You can say, My Lord and my God, I want to become happy and pleased with what you have provided me thus far. Help me and help every brother and sister in the name of Yeshua the Messiah. आप ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि मैं हमेशा मैं आनंदित रहूं। आपने जो कुछ मुझे दिया है उसमें मैं संतुष्ट रहूं, मैं आनंद मनाऊं। प्रभु जी, आप मेरे प्रभु जी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरी मदद करें। Father, I want the power of deep focus that comes with contentment so that I can achieve my goals in life faster. So help me and help all my brothers and sisters in the name of Yeshua the Messiah. हाँ परमेश्वर पिता, मैं आपसे उस आत्मा को मांग लेता हूँ जिसके द्वारा मैं बहुत ही अच्छे एकाग्रचित होकर जिस बात पे मुझे ध्यान देना है उसी पे मैं ध्यान लगाने पाऊँ, ताकि मेरे जीवन का जो लक्ष्य है, जिन बातों को मैं पाना चाहता हूँ, उनको मैं हासिल करने पाऊँ यीशु मसीह के नाम से। You, the spirit of contentment from the throne of the living God, here I am. Here are my brothers and sisters. We are available. Help us every day to be content along with godliness in the name of Yeshua the Messiah. हे संतुष्टि की आत्मा जो परमेश्वर पिता के सिंहासन पे है, मैं यहाँ पे हूँ, मेरे भाई बहन यहाँ पे हैं। हम आपको अपने जीवन में प्रभु जी हम ग्रहण करने के तैयार हैं। आप हमारे जीवनों में आ जाए प्रभु यीशु के नाम से। Help me to appreciate and become satisfied with what you have blessed us with in the name of Yeshua the Messiah. हाँ प्रभु जी, आप मेरी मदद करें कि मैं सराहना करने पाऊँ, जो कुछ आपने मुझे दिया है उससे मैं तृप्त होने पाऊँ प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से। Spirit of contentment, help me so that I will not be upset by people or circumstances. Help me and all my brothers and sisters in the name of Yeshua the Messiah. हाँ संतुष्टि की आत्मा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जो कोई लोग मुझसे जो मुझे नाराज करना चाहते हैं, जो लोग हैं, जो परिस्थितियाँ मुझे नाराज ना करने पाए, परंतु प्रभु जी मैं आप हमेशा संतुष्ट रहूँ, अच्छे संबंध में उनके साथ रहूँ। Spirit of contentment, help me, cause me and all my brothers and sisters to experience complete peace of mind and also peace with others in the name of Yeshua the Messiah. संतुष्टि की आत्मा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे मेरे जीवन में पूर्ण शांति प्रदान करें, मेरे मन में पूर्ण शांति प्रदान करें और मैं वैसे ही दूसरों के साथ भी शांति से व्यवहार करने पाऊँ। Spirit of contentment, I pray right now, protect me and all our brothers and sisters from any spirit of intimidation, from any spirit of harassment, from any spirit of anger, any type of violence. Protect us from all inferiority complex because of the spirit of contentment in us, which is given by God, our Lord. Help us. In Yeshua the Messiah's name we pray. संतुष्टि की आत्मा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप मुझे हर एक नकारात्मक भावनाओं से सुरक्षित रखेंगे, हर एक क्रोध से, हर एक शोषण की आत्मा से, हर एक बैर भाव की आत्मा से, हर एक जो मेरे विरोध की जो लोग मेरा करते हैं और हर एक बातों से आप मुझे सुरक्षित रखेंगे। मुझे और मेरे हर एक भाई बहनों को आप सुरक्षित रखेंगे प्रभु यीशु के नाम से। Help me, Lord, and help my brothers and sisters that we will be tolerant of other people's opinions and actions, and also help us that we will be protected from resentment toward others in the name of Yeshua the Messiah. हाँ प्रभु, मेरी और मेरे भाई बहनों की आप सहायता और मदद करें प्रभु जी कि हर एक प्रकार से प्रभु जी जो विरोध की जो भावना है प्रभु जी, आप हर एक बर्दाश्त करने की आत्मा प्रभु जी मुझे प्रदान करें प्रभु जी। चाहे उनकी राय कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो कोई कार्य कैसे क्यों ना करें, मैं उनका बर्दाश्त करने पाऊँ, मैं दूसरों के साथ शांति से रहने पाऊँ प्रभु। Lord Jesus, I pray for myself and all my brothers and sisters that you will protect us from vengeful mindset. Protect us from ungodly competition and rivalry, O Lord. Protect us from all emotional problems in the name of Yeshua the Messiah.
हाँ, संतुष्टि की आत्मा, आप मेरी सहायता मदद करें कि मैं किसी के प्रति बदला लेने की भावना ना रखूं। आप मैं कभी भी किसी प्रकार से प्रतिस्पर्धा की भावना ना रखूं, जो कि मसीह के वचन के बाहर की बातें हैं। मैं किसी से कंपटीशन ना करूं। हाँ, परंतु प्रभु जी, मैं आप में संतुष्ट रह के अपने जीवन अच्छे से जीने पाऊं, ईश्वर के नाम से। Lord Jesus, I pray for myself and all my brothers and sisters that make us incorruptible, and therefore we will be free from the spirit of greed and its consequences. In the name of Yeshua the Messiah, protect us from all uncertainty in our lives in the name of Yeshua the Messiah. संतुष्टि की आत्मा, मैं अपने लिए, अपने हर एक भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमें भ्रष्ट होने से बचाएं, हर एक भ्रष्टाचार से आप हमें मुक्त रखें प्रभु जी। कोई भी प्रभु जी लालच की आत्मा और जो भी प्रभु जी जो उसके परिणाम है, आप हमें उनसे सुरक्षा प्रदान करें प्रभु। Lord Jesus, we pray because of this contentment in our life which you give, protect us from shame and disgrace and clothe us with dignity and honor in my life and all my brothers and sisters in the name of Yeshua the Messiah. हाँ प्रभु यीशु मसीह, संतुष्टि की आत्मा के द्वारा प्रभु जी आप मुझे हर एक शर्मिंदगी से, हर एक अनादर से प्रभु जी बचा के रखें, परंतु उसके बजाय प्रभु जी आप महिमा और आदर और प्रभु जी आपकी ओर से प्रभु जी मान सम्मान प्रभु जी आपके द्वारा बढ़ने पाए प्रभु। Protect us from all demonic oppression and afflictions in the name of Yeshua the Messiah. हर एक दुष्ट अंधकार की शक्तियों से प्रभु जी जो हमें पीड़ा पहुंचाने की कोशिश करती हैं, आप हमें हम उनसे सुरक्षित रखें प्रभु। We lift our hands and we thank you that you have answered our prayers. In Yeshua's mighty name we pray. Amen. हम अपने हाथों को उठा के इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। आमीन। God bless you. Have a wonderful day. Do pass this link to others. प्रभु आपको आशीष दे, आपका दिन अच्छा हो। कृपया इस लिंक को दूसरे के साथ भी बांटें। I really appreciate all your support and generosity. मैं आप सभी के सहयोग के लिए, आपकी उदारता के लिए आपका धन्यवाद देता हूँ। God bless you. प्रभु आप सबको आशीष दें।